302 Shifters Haulage. प्रिपेयर अच्छा पहले अपन क्वेश्चन नंबर बी कर लेते हैं क्योंकि वो हम्म। सम है. प्रिपेयर अ प्रॉफिट टेबल शोइंग सिक्स पॉसिबल प्रॉफिट फिगर्स पर पीरियड. Six possible profit figures per period. Shifters haulage. Shifters haulage is considering changing some of the vans it uses to transport crates for a customer. The new van comes in three sizes: the small, medium, and large. Shifter haulage is unsure about which type to buy. The capacity is 100 crates for small van, 150 for medium van, and 200 for large van. Demand for crates can be either 120 or 190 crates per period, with probability of the higher demand figure being zero point 0.6. The sales price per crate is 10. Variable cost is 4 for all van sizes, subject to the fact that if the capacity of the van is greater than the demand for crates in the period, then the variable cost will be lower by 10. If the capacity of van is greater than the demand, okay, then the variable cost will be lower by 10% to allow for the fact that vans can be partly empty when transporting crates. SH is concerned that if the demand for crates exceeds the capacity of the vans, then the customers will have to be turned away. SH estimates that in this case, goodwill of 100 would be charged against profits per period to allow for for lost future sales, regardless of the number of customers that are turned away. Depreciation charge would be 200 period for the small, 300 for medium, and 400 for the large van. SH has the past sorry in the past been very aggressive in decision making, pressing ahead with rapid growth strategies. However, its managers have recently grown more cautious as the business has become more competitive. चलो फिर मुझे बी में प्रॉफिट टेबल बनाना है शोइंग सिक्स पॉसिबल प्रॉफिट फिगर्स. तो मैं सबसे पहले सप्लाई, मेरा डिमांड, 150, 100, 150, 200. तो सबसे पहले द कैपेसिटी इज 100 वैन, तो मुझे सप्लाई करने 100 बट डिमांड है 120 की. तो सबसे पहली बात तो इफ 100 रेट्स आर सप्लाइड तो क्या होगा. यूनिट्स तो मेरे 100 रहेंगे. सेलिंग प्राइस वुड बी 10. वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 4.
मैंने कुछ नीचे बोला था कि फॉर ऑल वैन साइजेस सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट इफ द ऑफ द वैन कैपेसिटी ऑफ द वैन is greater than the demand, then variable cost will be lower. अभी तो कैपेसिटी ग्रेटर नहीं है क्योंकि डिमांड ही ज्यादा है, but SH estimates that in this case goodwill of 100 would be charged against profits per period to allow for lost future sales regardless of the number of customers turned away. मुझे गुडविल माइनस करना पड़ेगा हमेशा. इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ हमेशा यहाँ पे एक्चुअली. गुड मुझे भी 100 का चार्ज करना पड़ेगा. प्लस ये मेरी कौन सी है, ये मेरी स्मॉल वैन है, सो स्मॉल वैन if only 100 crates are supplied, then we are not able to satisfy the 120 and 190 demand in full, and thus goodwill will be charged. अब मेरा डेप्रिसिएशन कितना था स्मॉल वैन के लिए, था 200 का. मेरा ये 300 यहाँ पे ऐसे का ऐसे आएगा, ये 300 यहाँ पे मेरा ऐसे का ऐसे आएगा. मीडियम वैन्स. In medium vans, there are two options wherein we are supplying 150 crates for demand of only 120 and 190 crates. Thus, once we would be able to satisfy the demand, and on the contrary, we would not be able to satisfy the demand. चलो अभी सबसे पहले 150 के लिए कर लेता हूँ. मेरा सेलिंग, सॉरी मेरा 120 के लिए ना, हाँ. अब सेलिंग प्राइस बिके तो 120 की आएगी, लेकिन लेकिन वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने मेरे को बोला था यहाँ पे कि द सेल्स प्राइस पर क्रेट 100, वेरिएबल कॉस्ट 4, बट all van sizes subject to the fact that if the capacity of the van is greater than the demand, then the variable cost will be lower by 10%. So 4 minus 4 का 10% तो 36 आती है, 3.6 आती है सॉरी, तो ये 3.6 आ गई. गुडविल 100 की. गुडविल अभी क्यों आएगी, क्योंकि अब मैं ज्यादा सप्लाई कर रहा हूँ तो गुडविल नहीं आएगी. अभी डेप्रिसिएशन जो जो चार्ज होगी वो होगी 300 फॉर मीडियम टर्म वैन. और कोई कॉस्ट आएगी यहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता फिलहाल.
फिर आती है सेम चीज फॉर 190 क्रेट्स। 190 के भले ही मैंने मतलब मेरे को ऑर्डर आया था, लेकिन मेरा जो डिमांड था वो सिर्फ 150 का ही था। बराबर है। अब मैं सप्लाई नहीं कर पाया तो मेरा गुडविल आएगा 100 का। हमें वेरिएबल कॉस्ट तो कम हो ही गई है, तो दिस इज नाइस। 560 में को आ रहा है फिलहाल के लिए। गुडविल मैंने चार्ज कर दी 10, सेलिंग प्राइस थी। सेकंड यहाँ पे 300, यस लेट्स गो। सो यहाँ पे आना चाहिए। ओहो, मैंने कंट्रोल एक्स दबा दिया था पहले। यही फिगर आएगा, यहाँ पे यही फिगर आएगा। 4, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। have to re-prepare this 100। यहाँ पे आएगा 468, यहाँ पे आना चाहिए 560 मेरे हिसाब से। कर दिया लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म वैन जानते। लार्ज वैन, लॉन्ग टर्म नहीं, लार्ज वैन्स। इन लार्ज वैन्स, इन लार्ज वैन्स we are supplying 200 crates when where whereas the demand is of only 120 and 190 crates. Thus, once we would be able to satisfy the demand, so thus we will be able to satisfy the demand. Thus, we would be able to satisfy the demand. So, no goodwill will be charged. अच्छा, 190 क्रेट्स के टाइम में मैंने यहाँ पे 3.6 लिया हुआ है, लेकिन मैं कम सब चार्ज कराऊँ तो यहाँ पे मेरा 4 ही आएगा एक्चुअली, मुझे लगता है। मैं उतना सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। 190 पहले क्या होता, 150 के टाइम पे 120 डिमांड था, तो मैं ज़्यादा लग गया, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 3.6, यहाँ पे 190 किया तो 4। कूल कूल कूल। उसके बाद नीचे यहाँ पर अब 190 आएगा, यहाँ पर भी 190 आएगा और 3.6 कांस्टेंट रहेगा। गुडविल नहीं ही आएगा अभी, कहीं पर भी गुडविल नहीं आएगा। यहाँ पर भी आएगा वो 468 पे आएगा वो 916, लेकिन अभी यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा मीडियम टर्म। मीडियम टर्म हो गया यहाँ पे अभी लार्ज वैन्स। डेप्रिसिएशन अलग अमाउंट है, लेकिन डेप्रिसिएशन की अमाउंट अलग है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 400 फॉर लार्ज वैन, एंड यहाँ पे भी 400 फॉर लार्ज वैन। हो गया राहुल। एक मिनट। मैं वो वाला कर रहा हूँ, लार्ज वैन का बड़ा दूसरा वाला। पता नहीं, मेरे को एक जगह पे ना 468 आ रहा है मीडियम वैन का। हाँ, मेरे को भी 460 है। मैंने क्या किया, 120 कर रहे तो उसने हमको
नहीं, इसमें गुडविल पे करना पड़ेगा ना 468 के लिए क्यों मेरे गुडविल हिसाब से। आएगा? वहां पर तो हम लोग पूरा दे रहे हैं, वहां पर क्यों गुडविल आएगा? अच्छा सॉरी, डिमांड मेरी 120 है, पता सप्लाई 150 कर रहा हूँ बराबर, तो उसमें नहीं आया तो मेरा 460 बराबर रहेगा। और हाँ जहाँ पे 150 का वहाँ पे 500 मेरा प्रॉफिट है। वही, बार चेक कर लेते हैं। और ये लार्ज डिमांड का तो एक ही रहेगा ना। वो हाँ, वो एक ही कॉन्सेप्ट है दोनों के लिए। हाँ, क्योंकि मेरा 200 रुपये तो 150 में 190 हो। क्वेश्चन ढूंढने में आरएम क्या जाता है? 301 तो आ गया, 302 है। हाँ ओके, 300, 300, 468, 500, 368, 816। चलो ठीक है, गुड, गुड टू। 300, 468। करता हूँ, तो अपनी स्क्रीन शेयर करेगा उस टाइम तक? हाँ, कर ले, कर ले। ये देख, इसका मैंने 468 आया, इसका 500 आया। ये गलत है क्या? डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग है ना, और हाँ, और तू ज्यादा सप्लाई कर रहा है तो तेरा 3.6 ही आएगा ना। हम्म, तो भी गलत लग रहा है। आंसर वो नहीं आ रहा है, प्रॉफिट मेरा क्या आ रहा है, 880 आ रहा है। पर तेरा 190 और 120 आएगा ना नंबर ऑफ यूनिट्स, तो भले ही तूने 200 सप्लाई किया, लेकिन तेरा डिमांड तो 120 और 190। मैंने कहा था कि सेम कॉन्सेप्ट आएगा। आंसर से हाँ, अब बराबर आया तेरे को 120 यूनिट्स के लिए। अब ऐसे में 190 ना। बराबर, परफेक्ट। आया, बराबर आया। एक मिनट तेरा स्क्रीन शेयर कर, मेरा मुझे खाली स्क्रीन प्रेजेंटेशन देखना है। वही है, वैसा ही है। तो ऐसे लिखे है क्या? ठीक है क्या? हाँ, ठीक है, फिर अभी आ जाते हैं इसके थियोरी क्वेश्चंस पे। Explain the principles behind maximax, maximin, and expected value criteria that are sometimes used to make decisions in certain situations. Maximax stands for maximizing the maximum return an investor might expect. An investor that subscribes to the Maximax philosophy would generally select the strategy that could give them the best possible return. They will ignore all possible returns and only focus on the biggest. Hence, this type of investor is often accused of being an optimist or a risk taker. Maximin stands for maximizing the minimum return an investor might expect. Maximizing the minimum return an investor might expect. This type of investor will focus only on the potential minimum returns and seek to select the strategy that will give the best worst case result. This type of investor could be said to be being cautious or pessimistic in their outlook and a risk avoider. Expected value averages all possible returns in weighted average calculation. For example, if an investor could expect 100 with a probability of 0.3 probability and 300 with the probability of 0.7 probability, then on average the return would be, तूने वो calculation दिया है, this figure would then be used as a basis for investment decision.
The principle here is that if the decision was repeated again and again, then the investor would get the EV as a return. Its use is more questionable for use on one-off decisions. तो इसको अपन वन ऑफ डिसीजन में यूज नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट. Using your profit table from B, about discuss which type of van asset should buy, taking into consideration the possible risk attitudes of the manager. तो currently क्या कर रहा है वो? SH has in the past has been very aggressive in decision making, pressing ahead with rapid growing strategies. However, its managers have recently grown more cautious as the business has become more competitive. तो पहले वो अगर इतना ज्यादा एग्रेसिव हुआ करता था तो उस टाइम पे उसने वो लार्ज वैन सप्लाई करता बराबर. लेकिन अब जब बराबर। एवर्स हो रहा है धीरे धीरे, जब वो रिस्क एवर्स हो रहा है. नहीं 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 नहीं, मुझे अभी याद आया. तो देख ऊपर अपने को क्या? कुछ तो ये दिया था, प्रोबेबिलिटी का दिया था देख. हाँ, वो ना हायर डिमांड फिगर। किधर है वो? हाँ ये देख. सेकंड फिगर। प्रोबेबिलिटी ऑफ द हायर डिमांड फिगर बीइंग 0.6. तो ये लोग ने कैसे किया रहेगा हायर डिमांड फिगर? तो फिर अभी अभी आज के तारीख में इसने ऐसा किया रहेगा. इसने एक्सपेक्टेड वैल्यू से जाएगा ये, क्योंकि अब ये कॉशियस बन रहे हैं ना. तो अभी इधर तो ले ले, इधर तो फर्क ही नहीं पड़ता. लेकिन जब इधर आएगा कॉपी पेस्ट कर। तो हायर डिमांड फिगर 0.6, 0.4, और इधर आएगा तभी 0.6, तो भी 0.4. तो भी 200 गुड्स ही सप्लाई करने को आ रहा है. आजा इनके सोल्यूशन पे आते हैं. ये देख, लार्ज वैन 637 आ गया. बराबर है ना अपने को भी. थ्री हंड्रेड हाँ, बराबर थर्टी बराबर। सेवन 637 परफेक्ट. देख, this depends on the risk attitude of the investor. If they are optimistic about the future, then the maximax criteria would suggest that they chose the large van as this has the potentially high greatest profit. If they are more pessimistic, then they would focus on the minimum expected returns and choose the medium van as the worst possible result. It is 468, which is better than the other two options. We are also told that the business managers are becoming more cautious, and so maximum criterion must be preferred by them. Expected values could be calculated thus. तो इन्होंने expected values calculate किए हैं. Given SH is considering replacing the number of vans, you could argue that an EV approach has merit, not being the one-off decision, assuming individual booking sizes are independent of each other. The final decision lies with the managers. But given what we know about their cautiousness, a medium sized van would seem a logical choice. The small van could never be a correct choice. ऐसा उन्होंने बोला. उसमें प्रोबेबिलिटी कम है अपन को। क्या क्या? उसमें प्रोबेबिलिटी कम है स्मॉल वैन में। लेकिन इन्होंने यहाँ पे मीडियम टर्म वैन मैक्सी मिन में लिया ना शायद. Mistake, then it would focus on the minimum expected returns and choose the medium van, the worst possible result of 468. This is better, which is better than the other two options. We are also told that business managers are becoming more cautious, and so maximum criterion would be preferred. तो इन्होंने मीडियम टर्म वैन को ही क्यों लिया? मीडियम वैन को ही क्यों लिया, लार्ज वैन को क्यों नहीं लिया? फिर ज्यादा रिटर्न तो उधर से आ रहा है. मेरे को ये डाउट है। क्या? एक मिनट।
क्योंकि तेरे डिमांड में 120 वाली डिमांड में है, तेरा सेटिस्फाई में ज्यादा इसका इसके लिए। नहीं रे, ऐसा नहीं, रुक जा, expected to that EV approach has merit. अच्छा रुक, ये लोग मैक्सिमम ले रहे हैं ना? हम्म। ओके, मैं को समझा। अरे ये लोग मैक्सिमम ले रहे हैं तो उन्होंने 468 लिया है। हाँ, मैं वही सोच रहा, अपन गलती से 468 और 487 को मतलब ये सेम करके बैठ गए। ये देख, ये तो तेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू है, लेकिन तेरा मैक्सिमम में क्या होता है? तू सबसे लोएस्ट वैल्यू को लेता है। रुक जा, मैं तब। ऊपर ऊपर लेके हम्म। आता हूँ। तो जो सबसे लोएस्ट है, अपन सबसे पहले वो सिलेक्ट करते हैं। सब में से 468 एंड 368, तो में से सबसे तो हाईएस्ट। इसमें से जो हाईएस्ट है। तो ये 468 सबसे हाईएस्ट है। ऐसा इसलिए उन्होंने बोला मीडियम टर्म वैन फॉर मैक्सिमम डिसीजन, ऐसा। ठीक है। बराबर। मैक्सिमम।